کے ارادے نہیں ہیں ملاقات کروانے سے. یہ عمران خان سے اتنے ڈرے ہوئے ہیں کہ یہ ملاقات عمران خان کو کہتے تنہائی میں ڈالا ہوا ہے، نہ ان کا علاج کرانے دے رہے ہیں. اور یہ جو آئسولیشن ہے یہ انٹرنیشنل لوکل ایک جرم ہے، یہ کرمنل ایکٹ ہے جو یہ کر رہے ہیں. یہ چور ہیں نہ یہ دیکھیں جب حالات کہاں جا رہے ہیں. جب آپ 26ویں ترمیم لاتے ہیں قانون ججز کو تو آپ نے بالکل ہی وہ دبوچ دی ہے نا، تو کوئی جج کا یہاں فیصلہ نہیں کر رہا. لاقانونیت ہو چکی ہے، آپ کو نظر نہیں آ رہا. اس وقت بندوق اٹھاؤ کسی کو مار دو. آپ بندوق اٹھاتے ہیں، یہ کیوں مارے جا رہے ہیں؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے جو کچھ یہ ہو رہا ہے یہ اتنی بڑی کرمنل ایکٹ ہے، یہ سارے مجرم قرار دیے جائیں گے. اگر صحیح انصاف ہوا تو یہ جرم ہے، قتل کرنا جرم ہے. 79 لوگوں کو قتل کرنا انہوں نے 9 مئی میں کیا، انہوں نے 26 نومبر کو کیا، انہوں نے مریدکے میں کیا. اب بڑھتی جائے گی بات، یہ کم نہیں ہونا لگا. اب تو جو آپ قاتلوں کو کھڑا کر دو لا کے یونیفارم پہنا کے، وہ آ کے کسی کو مار دیں گے. تو اس لیے یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں، عمران خان کو اندر بند کر کے پاکستان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. پاکستان اس وقت بڑی مشکل وقت سے گزر رہا ہے. اور آپ کبھی کشمیریوں کے اوپر گولی چلا دو، جی پی کا ووٹ چوری کر لو، پنجاب کا ووٹ چوری کر لو، کراچی کا ووٹ چوری کر لو، تو کیا لوگ خوشیاں منائیں گے؟ اس کا ریاکشن تو آئے گا. جب ریاکشن آتا ہے کہ تم کہتے تم انصاف مانگتے کیوں، تم اپنا حق کیوں مانگ رہے ہو، یہی ہو رہا ہے نا. اور عمران خان کو اس سے قید میں رکھا ہوا ہے. اب سیدھی سی بات ہے، عمران خان نے دسمبر میں کہہ کے بھیجا تھا عاصم منیر مجھے مارے گا. اگر مجھے پوچھو عاصم منیر مجھے مارے گا، تو ہم تو یہ نہیں ہونے دیں گے. ہم بھی لڑیں گے عمران خان کی آزادی کے لیے، اور ہم یہیں بیٹھیں گے کہ ہمارے پہ گولیاں چلائیں، جو مرضی کریں. ہم یہاں سے آج تو نہیں اٹھیں گے. جس نے رکنا ہے رک جائے عمران خان کے لیے، جس نے جانا چلے جائے، ہمیں نہیں فرق پڑتا. ہم بہنیں ادھر ہی بیٹھیں. میڈم محمود خان اچکزئی صاحب سے اور علامہ ناصر عباس صاحب سے جب بھی بات کریں تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے مذاکرات چل رہے ہیں، لیکن ابھی ہم بتا نہیں سکتے کہ کس لیول پہ چل رہے ہیں. میرا نہیں خیال آپ کو انہوں نے یہ کہا ہوگا، کب کہا ہوگا مجھے نہیں. ہمارے ساتھ انہوں نے ایسی کوئی بات، آپ کے ساتھ ہمارے ساتھ ایسی آپ نے غلط بات کی ہے، یہ ایسی بات انہوں نے کبھی نہیں. مشتاق علی صاحب اڈیالہ کے باہر موجود ہوں. شفیع جان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات چیت کرنے کی کوشش کریں گے. شفیع جان صاحب، آج بھی روک دیا گیا، پھر کب تک ایسا چلتا رہے گا؟ دیکھیے، بات بڑی واضح ہے کہ جب کسی ملک میں قانون اور آئین معطل ہو، پھر اس قسم کے فیصلے ہی ہوتے ہیں. جیل کا سپرڈنٹ اتنا تگڑا ہے کہ وہ کسی قانون اور آئین کو مانتا ہی نہیں ہے، نہ اسلام آباد ہائی کورٹ کو مانتا ہے کسی فیصلے کو. پھر جب ہم ہائی کورٹ کے پاس جاتے ہیں اور ان سے ہم فرماتے ہیں کہ آپ نے فیصلہ دیا ہے اور اس فیصلے کی امپلیمنٹیشن گراؤنڈ پہ نہیں ہو رہی، تو پھر جو کورٹ ہے وہ اتنی ویک فوٹنگ پہ ہے کہ وہ کنٹیمپٹ آف کورٹ نہیں لگاتا. تو بات بڑی واضح ہے کہ یہ جو جنگ ہے یہ بہت بڑی جنگ ہے. عدالتوں کا کیا بنے گا کہ اگر اڈیالہ جیل کا سپرنٹینڈنٹ ہی عدالتوں کے فیصلے نہیں مانتی؟ 26 اور 27 ترمیم کے بعد ویسے بھی یہ عدالتی محکوم ہو چکی ہے. جب عدالتوں کے اوپر ایک عدالت بنا دی جائے، پھر نیچے والی عدالت تو ویسے ہی خالی بلڈنگز رہ جاتی ہے. 26 اور 27 ترمیم آپ نے دیکھا ہوگا کہ عدالتیں بھی محکوم ہیں، یہاں پہ آئین اور قانون بھی معطل ہے، پارلیمنٹ سے طاقت بھی لے لی گئی ہے. بات بڑی واضح ہے کہ اب سڑک گرم کرنی پڑے گی، اسی سے مذمت سے کوئی مفاہمت کا راستہ کھلے گا. نہیں ہے کوئی ارادہ سڑک گرم کرنے کا آپ لوگوں کا؟ دیکھیں، تحریک ذمہ داری جو ہے وہ اچکزئی صاحب کے پاس ہے. ہم نے آخری دفعہ بھی یہ وزیر اعلیٰ تو سہیل خان آفریدی صاحب ہیں، آئی تھنک وزیر اعلیٰ وہ ہیں، تحریک کی ذمہ داری خان صاحب نے اچکزئی صاحب کو دی ہے کہ انہوں نے تحریک چلانی ہے، آپ لوگوں نے تحریک کے حوالے سے انہوں نے فیصلہ کرنا ہے. اچکزئی اس زمن میں آفریدی صاحب کی ملاقات بھی ہوئی تھی اچکزئی صاحب سے، ٹھیک ہے. اور بڑے کیٹیگوریکلی الفاظ میں اچکزئی صاحب نے یہ بات کہی تھی کہ تحریک کے حوالے سے جو بھی فیصلہ ہوگا وہ میں لوں گا. اور آفریدی صاحب اور جو پیغام اندر سے آیا تھا، کیونکہ ہم تو اپنے لیڈر کو ہی فالو کریں گے، اور وہ جو فیصلہ کریں گے خیبر پختونخوا کی تحریک انصاف حکومت، تحریک انصاف تمام ان کے پیچھے. اگر محمود خان اچکزئی کوئی ایسا فیصلہ نہیں کرتے تو پھر آپ لوگ کوئی فیصلہ کریں گے، یا جب تک وہی نہیں کرتے تب تک چلتا رہے گا؟ عمران خان صاحب کے آرڈر کے پابند ہیں، انہوں نے ہی ان کو لیڈر آف اپوزیشن بنایا ہے، اور ہم نے 5 مہینے ان کے نوٹیفیکیشن کا ویٹ کیا. جب آفریدی صاحب نے اسٹریٹ موومنٹ چلائی، جب مومنٹم بنا، جب پریشر بڑھا، تو ان کا نوٹیفیکیشن ہو گیا. اور ہمارے ایم این ایز نے بھی لائن میں کھڑے ہو کے اچکزئی صاحب کو ووٹ دیا، کیونکہ خان صاحب کا آرڈر تھا. اب خان صاحب کا ہی آرڈر ہے کہ فیصلہ جو ہے تحریک کے حوالے سے علامہ صاحب اور اچکزئی صاحب نے لینا ہے،
और वो जो फैसला लेंगे तहरीक इंसाफ उसके पीछे खड़ी अच्छा, यहाँ पर मैं अगर बात करूँ तो यहाँ वर्कर के अलावा 8-10 से ज्यादा मुझे MPs नजर नहीं आते। है। एमपीएस तो तकरीबन सारे यहाँ पे मौजूद हैं। कितने 90 MPs हैं, 92 MPs हैं यहाँ। कोई 70%। पंजाब से बहुत सारे MPs हैं, पंजाब- MNAs हैं। जी पंजाब के भी कुछ एमपीएस मैंने देखे हैं। हमारे कुछ 70% एमपीएस तो यहाँ पे मौजूद हैं। जिस तरह लीडरशिप को आना चाहिए था उस तरह नजर नहीं आ रहा। एमपीएस तो सारे यहाँ पे मौजूद है। अगर आप यहाँ पे कैमरा दौड़ाए 70% एमपीएस यहाँ पे मौजूद है। गौहर साहब नहीं है, उसके अलावा आ जाए हम मोहम्मद खान साहब नहीं है, शहर यार अफरीदी, अली अमीन गंडापुर, बड़े बड़े नाम मैं अगर बात करूं तो नहीं है। नहीं, मैं तो अपने एमपीएस का कह रहा हूँ क्योंकि अफरीदी साहब एमपीएस को लीड करते हैं, उनको हिदायत थी और 70% लोग यहाँ पे मौजूद है। और जब बजट पेश किया जाएगा वहाँ भी हमारी पार्लियामेंटेरियंस और हमारे एमएनएस एहतजाज रिकॉर्ड करेंगे। अच्छा, आपके कोई MPs आपसे नाराज भी हैं? ये खबरें जो है अभी तक गर्दिश कर रही हैं। में कोई नाराज नहीं हो सकता। ये जितने भी लोग इस वक्त इसी से डिसएग्री करते हैं कोई? जितने लोग मीडिया पे बात कर रहे हैं सब हमारे लिए काबिल इज्जत है, सब हमारे कोलीग्स हैं, सब इमरान खान साहब के वोट की वजह से पार्लियामेंट के रुकन बने हैं। कोई दूसरी दफ़ा बन रहा है, कोई तीसरी दफ़ा बन रहा है, और सब इमरान खान का कमाल है। अगर आज हमारे 92 MPs सूबे में हैं, MNAs जो हैं वो सेंटर में हैं, सेनेट के अरकान या पंजाब असम्बली के अरकान, तमाम लोग इमरान खान के मरहून मिन्नत है, किसी का कोई ज़ाती वोट नहीं। अभी आपने तरमीम का ये जो कह रहे हैं, ये बजट के टाइम पे ऐसी चीज़ें आती हैं। हर बंदे की हल्की की मजबूरियाँ होती हैं, फंड्स चाहिए होते हैं, पोस्टिंग ट्रांसफर्स के इश्यूज होते हैं। तमाम लोगों की राय का एहतराम किया जाएगा, तमाम लोगों को सुना जाएगा, तमाम लोगों से बातचीत होगी। अफरीदी साहब सबसे मिल रहे हैं और बजट जब हम पेश करेंगे तो हमारा नंबर सामने आ जाएगा। शफी जान साहब, तरमीम की आपने बात की, अभी 28वीं तरमीम का जिक्र चल रहा है कि बहुत जल्द होने वाली है। इस पर तहरीक इंसाफ क्या रजिस्ट करेगी? तहरीक इंसाफ का क्या अमल होगा? 26वीं 27वीं तरमीम को भी नहीं माना और हमने रजिस्ट किया। हम समझते हैं कि ये जो पार्लियामेंट है ये लेजिटिमेट ही नहीं है, ये कोई तरमीम कर ही नहीं सकती। ये इमरान खान के मैंडेट पे बैठी हुए हैं, इनका तो अपना मैंडेट कोई है नहीं। तरमीम अच्छी बुरी ये एक अलग बहस है। लेकिन कर तो लेते हैं ना, कर तो लेते हैं। ये डंडे के जोर पे कर रहे हैं, दोनों जमातें डंडे के जोर पे कर रहे हैं। 26वीं 27वीं तरमीम में जिस तरीके से उनको ड्राफ्ट पकड़ाया गया, उस ड्राफ्ट में ना ये फुल स्टॉप चेंज कर सकते थे, ना कॉमा चेंज कर सकते थे। अब 28वीं तरमीम की बात गश्त हो रही है और पीपल्स पार्टी एक उसूली स्टैंड ले रही है। नहीं, हमारी मुझे नहीं लगता कि पेपर पार्टी असूली स्टैंड अभी तक तो ले रही है। अभी वो कह रहे हैं कि क्या पेपर पार्टी की क्या बात? इस वक्त तो किसी के पास कोई ड्राफ्ट नहीं है, लेकिन जो क्या सराइयाँ पावर कॉरिडोर्स में हो रही है उनके मुताबिक सिंध की तकसीम, सूबों की तकसीम की बात हो रही है। कराची हो या फिर गवादर हो या फिर फाटा हो, इनको दोबारा एडमिनिस्ट्रेटिवली फेडरल के पास जाने की कह रहे पेपर हैं। पार्टी का अगर मैं माजी देखूं तो उन्होंने कभी रेजिस्ट नहीं किया। अगर रेजिस्ट नहीं किया तो अपनी सियासत माइनस कर देंगे, क्योंकि उनकी तो सियासत ही NFC पे, उनकी सियासत ही उस पे सिंध की तकसीम पे खड़ी है। अगर वो रेजिस्ट नहीं करेंगे, इनके साथ खड़े होंगे तो फिर अपनी सियासत खत्म कर देंगे। अगर खड़े होते हैं तो तहरीक इंसाफ उनको ज्वाइन करें। बजट के हवाले से जो एहतजाज का कॉल दी थी सुहेल खान अफरीदी साहब ने शायद कल, उस हवाले से क्या तैयारी है और क्या आप कल आए अमल होगा? बजट इस वक्त फेडरल हुकूमत पेश करने की पोजीशन में नहीं है। पहले 5 तारीख फिर 10 तारीख, अब 12 का कह रहे हैं। इन दोनों पार्टियों के आपस में भी डेडलॉक कोई बरकरार है। जब भी पेश किया जाएगा, हम खैबर पख्तूनख्वा के जो हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैं, अफरीदी साहब उनको लीड करेंगे, हमारे MNAs वहाँ पे मौजूद होंगे। जो एक इम्तियाजी सलूक खैबर पख्तूनख्वा के साथ रखा गया है। PSDP में 1186 स्कीम्स हैं, उसमें सिर्फ 6 स्कीम KP के लिए है। 1124 अरब का पैकेज है, सिर्फ 2.2 अरब KP के लिए दिया जा रहा है। NHA का 264 अरब का पैकेज दे रहे हैं, KP के लिए 8.8 अरब उसमें सिर्फ। फिर NFC का, NHP का, जम अजला का, ऑयल एंड गैस का, टोबैको सेस का, IDPs का हमारा अलग इशू है। ये तमाम तर इशू में एक इम्तियाजी सलूक हम देख रहे हैं। फिर एक इम्तियाजी सलूक वज़ीर आला साहब के साथ भी है कि उनका पासपोर्ट ब्लॉक है, दूसरा वज़ीर आला बाकू ब्राज़ील अपने जेट पे जा रही है। तो ये तमाम तर इशूज़ को हम वहाँ पे उठाएंगे और भरपूर एहतजाज। गिलगित के हवाले से बताइएगा कि गिलगित का जो इलेक्शन हुआ है, तहरीक इंसाफ को बज़ाहिर तो शिकस्त नजर आई है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जहाँ तक गिलगित बल्तिस्तान की बात है तो वो जो इलेक्शन था उसके तो साख ही मुतासिर हो चुकी थी। जिस तरीके से इलेक्शन को कंडक्ट किया गया, जिस तरीके से 2 पार्टियों को आज़ादाना माहौल दिया गया, वहाँ पे उनके लीडर्स मौजूद थे, बिलावल मौजूद थे, आसफा साहिबा मौजूद थी, नवाज शरीफ मौजूद, इवन वफाकी वज़ीर वहाँ पे मौजूद थे। अगर हमारा कोई सूबाई वजीर वहाँ पे होता या CM अफरीदी साहब वहाँ पे होते, अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान डिस्क्वालिफिकेशन की बात कर रहा होता, लेकिन वहाँ वफाकी वज़रा मौजूद थे, पैकेजेस दे रहे थे, लैपटॉप्स दे रहे थे, इलेक्शन कमीशन खामोश। फिर जिस तरीके से फॉर्म 47 पे हमारी रिजल्ट चेंज किए गए हैं, हम कम्प्लीटली इस इलेक्शन को मुस्तरद करते हैं। और जो तरीका देखिए, शुरू में हम 15 सीटों पे लीड कर रहे थे, क्योंकि ये जहाँ भी इलेक्शन कराएंगे पाकिस्तान के किसी कोने में तो फॉर्म 45 पे इमरान खान साहब ही जीतेंगे। कश्मीर में भी इलेक्शन होने जा रहे हैं, क्या देखते हैं? देखिए, उसके लिए पार्लिमानी बोर्ड बना दिया गया। टिकटों की तकसीम पार्लिमानी बोर्ड ने ही करनी है। जब टिकटों की तकसीम होगी तो वहाँ पे हम कोशिश करेंगे कि हम एक ही निशान पे लड़े, क्योंकि GB के इलेक्शन में भी हमने डेमोक्रेटिक पार्टी से अलाइंस किया। पोलो मैन उनका निशान था, उस पर पाबंदी लगा दी गई। 8 फरवरी को भी तमाम लोग हमारे आज़ाद थे। हम चाहते हैं कि हम एक ही निशान पे लड़े और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि वहाँ भी सिर्फ तहरीक इंसाफ। आखिरी सवाल है मेरा, सुहेल खान अफरीदी के हवाले से कहा जाता है कि करप्शन का गढ़ बना दिया गया है KPK को। कोई एक सबूत लेके आए,
हम तो रोज सीएम हाउस के गेट की तरफ देखते हैं, उनका ऐलान है कि सीएम की हाउस का जो गेट है वो खुला है, जो लोग ये बातें करते हैं। और हमने एक टोल फ्री नंबर भी दे दिया है, अगर किसी के पास कोई सबूत है उस गेट पे आए, उस टोल नंबर पे कॉल करे। और ये जो बातें करते हैं कुछ काले चैनल्स हैं जिसकी ड्यूटी यही है कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत पे, खैबर पख्तूनख्वा के वज़रा पे आप गंद उछालें, करप्शन की बात करें, लेकिन सबूत किसी के पास नहीं है। अलबत्ता करप्शन की जो दास्तानें हैं वो पंजाब में इस वक्त सामने आ रही है। सुतरा पंजाब इनका एक प्रोजेक्ट था जो ब्राज़ील से लेके आए थे। फैसलाबाद में जब ऑडिट हुआ सिर्फ एक ज़िले में तो 1 अरब की करप्शन सामने आई है। जब पूरे पंजाब की ऑडिट होगा तो ये खरबों की कहानी है, ये किसके अकाउंट में जाएंगे और कौन से इलाके में फ्लैट खरीदा जाएगा, ये आने वाले वक्त में वो कहते हैं उनसे ज्यादा अच्छा काम ही कोई नहीं करा सर। देखिए वो तो अपनी मरियम नवाज साहबा, उस्मा बुखारी साहबा, देखिए मरियम नवाज साहबा पहले तो अपनी सीट तो जीत लें, वो तो मेहर शराफत से हारी हुई हैं। उस्मा बुखारी के घर में तो खुद फॉर्म 47 का मुर्दा है जो उनका हस्बैंड है। पहले तो अपनी सीटें जीते फिर परफॉर्मेंस की बात करें। ये जो बयानिया बनाया जा रहा है कि वहाँ बड़ा काम हो रहा है, सिर्फ लाहौर तो पंजाब नहीं है। हस्बैंड पे आप इल्जाम लगा रहे हैं। मैं बरमला कह रहा हूँ, मैं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहता हूँ कि उस्मा बुखारी के घर में समीउल्लाह खान जो उसका हस्बैंड है वो फॉर्म 47 का मुर्दा है, उसके घर में एक मुर्दा दफन है। नहीं है तो जाए मुझ पे केस कर लें या फिर खोल लें हल्का। हम तो यस्मीन राशिद का हल्का खोल रहे थे, वो इस बुनियाद पे उन्होंने रिजेक्ट कर दिया कि यस्मीन राशिद ने ये साइन खुद नहीं किए, ना बैग्स खोले गए, ना फॉर्म 45 को वेरीफाई किया गया, ना वोट्स चेक हुए। इस बुनियाद पे देखिए आपने उस्मा बुखारी साहबा के बारे में बात की, उन्होंने रिएक्ट करना है। देखिए रिएक्ट करना है तो कर लें, हकीकत यही है, सारा पाकिस्तान यही एविडेंसेस जानता है है। आप लोगों के पास? आप लाहौर में ये माइक ले जाएं और किसी भी मोहल्ले में खड़े हो जाएं, वहाँ आप किसी से भी पूछ लें कि नवाज शरीफ अपनी सीट यस्मीन राशिद से हारा हुआ है, वो कहेगा बिल्कुल हारा हुआ है। फिर आप पूछ लें कि क्या मरियम नवाज जो हैं वो महर शराफत से हारी हुई हैं, बिल्कुल कहेंगे हारी। फिर आप पूछ लें कि उस्मा बुखारी का हस्बैंड हारा हुआ है, सब कहेंगे हारा हुआ है। सबको पता है कि 17 सीटों की जमात है, ये भर्ती किए हुए लोग हैं और 17 सीटों पर जब आप भर्ती हो जाते हैं फिर वो जो कहेंगे आप वही करेंगे। वो कहते हैं आप लोग नशाई हैं, नशे में बातें करते हैं, तो फिर उसको कुछ कहना चाहेंगे इस पर? देखिए जब हम पंजाब गए तो जिस तरीके से मैन हैंडलिंग वहाँ पे हुई, जिस तरीके से कॉरिडोर्स में उस्मा बुखारी ने कुछ पेड़ सहाफ़ियों को खड़ा किया था और जिस तस्दीक अमेज़ क्वेश्चंस वो कर रहे थे, तो उसका जवाब तो फिर जो उनको मिला है फिर वही है। कभी आप खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को जंगली करार देते हैं, फिर मैंने उसका रिएक्ट किया तो फिर औरत कार्ड लेके आ गए हैं। बात बड़ी वाज़ेह है कि इमरान खान का मुकाबला नहीं हो सकता। ये जो बयानिया बना रहे हैं कि हम बड़ा काम कर रहे हैं, लाहौर सिर्फ पंजाब नहीं है, आप सदरन पंजाब जाएँ, आप सरगोदा की तरफ ज़रा जाएँ, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वहाँ पे सेहत के मराकज़ नहीं है, वहाँ पे रोड नहीं है, वहाँ पे तालीमी मराकज़ नहीं है। इनके जितने प्रोजेक्ट्स हैं वो सारे फ्लॉप हो रहे हैं या उस पर करप्शन निकल रही है। मेडिकल ऑन व्हील्स इनका प्रोजेक्ट है वो प्राइवेटाइज हो रहा है, चीज़ें आउटसोर्स हो रही हैं। तो फिर हुकूमत को भी आउटसोर्स करते, वैसे भी आउटसोर्स तो है। आखिर में पाकिस्तानियों को क्या पैगाम? पैगाम एक ही है कि डटे रहें, जिस तरह इमरान खान साहब जेल के अंदर डटा हुआ है इस निज़ाम के खिलाफ, बाहर पूरा पाकिस्तान डटा हुआ है, इस तरह डटे रहें। जीत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और इमरान खान की। थैंक यू वेरी मच। शफी जान साहब हमारे साथ मौजूद थे जवान पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से। मैं आपसे इस वक्त अडियाला जेल के बारे से मुखातिब हूँ और इस वक्त अडियाला के ये मनाजिर हैं जो कि आपके सामने रखूँ। ये मैं अगर देख सकूँ तो इस पर साइड पर पुलिस, आलिमा खान साहबा, इमरान खान साहब की बहनें, उज़मा खान, नौरीन खान, मीना खान आफरीदी साहब, फिर शाहिद खटक साहब और तमाम तर लोग जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और पुलिस की, पंजाब पुलिस की भारी नफरी भी जो है वो यहाँ पर मौजूद है।